औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, नामीद होना पाकिस्तान के सिविल जुडिशल सिस्टम से ख़ास तौर पर नहीं हमें होना चाहिए। नामीद, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। सिस्टम बहुत स्लो है, इस पर बहुत बोझ है, अदारे काम दुरुस्त नहीं कर रहे। अल्लाह पर यकीन रखते हुए हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, सेक्शन 91 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 44 ऑफ द जनरल क्लास एक्ट 1897, इसकी हम बात करेंगे पब्लिक नाइजेंस के हवाले से। नाज़रीन, अंडर सेक्शन 91 civil procedure code, word nuisance has not been defined. Therefore, to find out its meaning, reference has to be made to section 3 subsections 47 of the General Clause Act 1897, wherein it has been defined. तो नाइजेंस का लफ्ज़ है, ये सेक्शन 91 में नहीं दिया गया, इसके लिए फिर जनरल क्लास एक्ट का जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 47 है उस तरफ हमें रुजू करना पड़ेगा। In Pakistan Penal Code, public nuisance has been defined as under Section 268. A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger, or an annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity or which must necessarily cause injury, obstruction, danger, or annoyance to person who may have occasion to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage. नाज़रीन इकराम, आवाम को किसी की प्रॉपर्टी की वजह से, किसी के रास्ता रोकने की वजह से, कोई रुकावट डालने की वजह से, या कोई शोर करने की वजह से, या जनरल पब्लिक के रास्ते में कोई रुकावट, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की वजह से जो एक्ट किया जाता है वो इसमें डिस्कस होता है पब्लिक नाइजेंस में। ये जो अभी मैंने आपके साथ पेश किया है आपके सामने, ये PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 633 में 633 में नरेट किया गया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट में यह कहा गया कि द टर्म पब्लिक नाइजेंस एज मेंशन्ड इन ब्लैक लॉ डिक्शनरी अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड्स एंड फ्रेज इज डिस्कस इन डिटेल। ये इसमें डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया गया इसी जजमेंट में PLD 2004 SC 633 में। एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक नाइजेंस हैड बीन डिफाइंड एक्सप्लेन्ड। The word nuisance is derived from French word nuire, which means to injure, hurt or harm. किसी को तकलीफ देना, नुकसान पहुंचाना, जख्मी करना। According to shorter Oxford dictionary, it means anything injurious to the community or to individual as member of it. यानी माशरे में रहते हुए किसी शख्स के लिए कोई चीज़ नुकसानदेह है तो उसको हम नाइजेंस में लेंगे। For which some legal remedy may be found. Liberally, anything that causes annoyance or that works hurt or injury, harm or prejudice to an individual or the public, or anything wrongfully done or permitted which injure or annoys another in the legitimate enjoyment of his legal rights would constitute nuisance. In short, anything done which unwarrantably affects the right of the others, endanger life or health, gives offense to the sense, violates the law of decentry, or obstruct the comfortable and reasonable use of property may amount to nuisance. ये जनाब नाइजेंस की मजीद जो तफसील बयान की गई है, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की गई है, इसे नरेट किया गया 1991 MLD 1340। अब ये पब्लिक नाइजेंस की बात थी इसमें। अब हम सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट हैं 2007 SMER 1157
और 2005 SMER 142, उसमें एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइसेंस. From the plain reading of the section, difference seems to be prevalent between a public license and a private license. In a public license, the act done by a defendant is supposed to be primarily illegal, whereas in private license, even a legal act could cause injury, danger, or annoyance to another person. The very opening sentence of the section that a person can be held guilty of a public nuisance only when any act or omission done by him is illegal. The doing of any act or being guilty of an illegal commission are joined in the section by conjunction or which precondition the act as well as omission with illegally. तो इसमें जनाब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि प्राइवेट और पब्लिक लाइसेंस में क्या फ़र्क है. नाज़रीन इकराम, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग सूट, अगर किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है किसी वजह से, किसी शख्स के एक्ट की वजह से आवाम को तकलीफ़ हो रही है, कोई रुकावट रास्ते में डाल दी गई है, कोई शोर मचा रहा है, किसी ने कोई ऐसा गड़ा खोद दिया जिससे एक बंदा को चोट लगने का अंदेशा है या चोट लग गई है, तो आपने सूट कैसे फाइल करना है. इस हवाले से PLD 2019 लाहौर 751 में बयान किया गया कि बिफोर अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 CPC, consent of एडवोकेट जनरल was required to file civil suit regarding public nuisance. आपने मुफादे अमा के हवाले से कोई मसला था तो उसके हवाले से अगर आपने कोई पिटिशन करनी होती थी ना इस तरह की, तो उसके लिए फिर एडवोकेट जनरल से इजाज़त लेना होती थी. ये इससे पहले था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट कर दी गई है सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 में. After amendment of section 91 subsection 1 by Code of Civil Procedure Code Punjab Amended Act 2018, now only leaves of the court was necessary for filing such a suit. Now, after aforementioned amendment 91 public nuisance, in the case of a public nuisance, the Advocate General or two or more persons with the leaves of court may institute a suit through no special damages has been caused for a declaration, an injunction, or for such other relief as may be appropriate. तो जनाब ये अब उसके बगैर भी, एडवोकेट जनरल के बगैर भी ये किया जा सकता है. PLD 2004 SC 633 में राइट ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई. अंडर कॉमन लॉ एन इंडिविजुअल कैन नॉट मेंटेन एन एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक नाइजेंस विदाउट प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज. इसी तरह जनाब 1995 CLC 846 में डैमेजेस नॉट नेसेसरली टू द पिकुनरी, जरूरी नहीं कि वो माली डैमेजेस हों. द डैमेजेस नीड नॉट नेसेसरली बी पिकुनरी बट शुड बी मटीरियल और सब्सटेंशियल, नॉट मेयरली सेंटिमेंटल, स्पेकुलेटिव और ट्रिफलिंग और मेयरली टेम्परेरी. ये डैमेजेस की बात की गई है. रिलीफ इन सूट फॉर इंजंक्शंस एंड डैमेजेस, ये PLD 2004 SC 633 2007 SMER 1157 में नरेट किया गया कि रिलीफ फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर इंजंक्शंस एंड डैमेजेस वुड बी अवेलेबल इन बोथ काइंड्स ऑफ नाइजेंस, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी. नाइजेंस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट 2007 SMER 1157 2005 SCMR 142. The existence of nuisance occurring or apprehended in a pure question of fact, which in case of permanent injection or damage is to be proved through evidence. का जनाब ये जो nuisance का मामला है, ये एक इसको आपने एविडेंस के थ्रू जो है वो साबित करना होता है. nuisance का प्रूफ के हवाले से PLD 2004 SC 633 सुप्रीम कोर्ट ने नरेट किया है इसे. Evidence would not be judged by its volume. Testimony of few witnesses might be sufficient to prove that nuisance was injurious to the physical comfort of community. मतलब ना बहुत सारा कोई आपको उसके लिए जो है ना वो एविडेंस इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है. बस चंद गवाहान भी अगर कहेंगे कि ये सोसाइटी की सेहत के लिए, सोसाइटी के मामलात के लिए, सोसाइटी के जो अंदाज है नज़्म नस्क है उसके लिए ये जो है वो गलत तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो
तो उसको भी जो है वो कंसिडर किया जाएगा कि वाकई इसको जो है, उसमें वॉल्यूम की बात नहीं है, असल चीज़ है कि कोई बंदा किसी के जो है वो हवाले से कोई रुकावट ना डाले, किसी के सिविल राइट्स को, किसी के जीने के हक को उसको जो है वो अ, रोके ना, उसको जीने से ना रोक जाए, जियो और जीने दो, ये बात है। लाइसेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन 2007 CLC 1345 में कहा गया कि काजिंग ऑफ nuisance to inhabitants of locality was a matter which could not be adjudicated upon by High Court, as not only disputed question of fact were involved, but also such inhabitants would have alternate remedy both under civil law or as well as criminal procedure code 1898। तो जनाब ये नरेट किया गया है कि इसके लिए जो रहायशी हैं किसी भी इलाके के, उनको अगर कोई ऐसी तकलीफ का सामना है तो उसके लिए हाई कोर्ट फोरम नहीं है, वो सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ से इस्तेफादा कर सकते हैं, सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं और क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम लाइसेंस के हवाले से कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। 1994 CLC 1401 में कहा गया कि एनी पर्सन इन द इमीडिएट नेबरहुड एंड एंटाइटल्ड टू यूज पब्लिक thoroughfare would have a special cause of action where it was obstructed and he could sue without proof of a special damage। एक शख्स जो है वो बिल्कुल साथ उसका हमसाया है और उसे जो है वो जो शारा आम है उसको वो इस्तेमाल करने का हक है, और उसको अगर उसे रोका जाता है उसकी बात की गई है। 1999 CLC 66 में कहा गया कि कन्वर्जन ऑफ ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इनटू कमर्शियल, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल कर देंगे तो ये भी लाइसेंस है कि वहाँ पर अब घर बने हुए हैं सारे, वहाँ पर एक आपने दुकान खोल ली है, शोरूम खोल लिया या होटल बना दिया या म्यूज़िक सेंटर बना दिया, तो पूरी जो लोकेलिटी है उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो तो रेजिडेंशियल एरिया है। ओपनिंग एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ ए स्कूल इन द रेजिडेंशियल एरिया 1999 CLC 66, अब आपका रेजिडेंशियल एरिया और वहाँ पर आपने स्कूल बना लिया तो वहाँ पर ट्रैफिक आ जाएगी, शोर मचेगा, लोग आएंगे जाएंगे, वो रेजिडेंशियल एरिया जो है वो ये भी जो है नाइजेंस पैदा करती है। इसी तरह 1999 MLD 411 में कहा गया कि शॉप्स खोखास एस्टेब्लिश बाय पिटिशनर बिसाइड्स द वॉल ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ जनाब ना खोखे दुकानें बना ली हैं, चलने फिरने वालों को रुकावटें होंगी। ब्लॉकेज ऑफ ए रोड, रोड को ब्लॉक करना, ये भी लाइसेंस में आता है, इसे PLD 1999 लाहौर 305 में नरेट किया गया। इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ पब्लिक स्ट्रीट रिजल्टिंग इन एनायंस टू पब्लिक कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पब्लिक लाइसेंस, आपने जनाब जो गली थी उसके अंदर रुकावट डाल दी है, कोई आपने वहाँ खोखा लगा दिया, आप वहाँ पर बैठने लग गए, मसलसल कुर्सी डाल के 3-4 कुर्सियाँ डाल के गली च बह जाते हो, इट्स नॉट फेयर। On the criminal side, even a noise made in carrying on a lawful trade under license if injunctions to physical comfort or community is a public nuisance। तो क्या जनाब क्रिमिनल साइड पर यह है कि बेशक आप काम कोई लाइसेंस लेकर क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उससे पब्लिक को, उस सोसाइटी को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो फिर नाइजेंस के जुमरे में आएगी। नाज़रीन इकराम, हमारे जैसे ममालिक में जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बल्कि फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज़ आप कह लें, जहाँ पर बाप भाई अपनी ही औलादों, अपनी ही बेटियों बहनों पर जुल्म करते हों, जहाँ पर रियासत में जो हुक्मरान अशराफी है वो अपनी ही रियाया पर जुल्म व सितम करते हों, वहाँ पर ये जो इस तरह नाइजेंस के कानून की कहाँ अमलदारी होगी। यहाँ आप देख लें लोग लाउड स्पीकर लगा कर शादियों पे खूब हंगामे करते हैं, मजहबी प्रोग्राम करने के लिए भी सारी रात ऊंची आवाज़ में स्पीकर लगा देते हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है, बीमार है, कोई स्टूडेंट है। हालांकि इस हवाले से ऑर्डिनेंस भी है कि ऊंची आवाज़ में आप नहीं कर सकते, या 15 पे कॉल करें वो आ जाएंगे, लेकिन मोहल्ले में अगर कोई बंदा महफिल करवा रहा है, सारी रात उसने स्पीकर चलाया है, अगर उसकी कंप्लेंट कर देंगे तो लोग कहेंगे देखें जी ये तो महफिल हो रही थी, नेक काम हो रहा था, तो ये इस साहब ने जो है ना इसमें रुकावट डाल दी है। तो ये सूरत हाल हमारी सोसाइटी को शायद
पब्लिक नाइजेंस के हवाले से, प्राइवेट नाइजेंस के हवाले से अभी उसने बड़ा सफ़र करना है। अभी तो हमें जो है ना वो अपने गिरेबान में झांकना है। हो सके तो गिरेबान के चाक सी लेना, वरना तुम भी हमारी तरह ही जी लेना। अशरफ आसमी एडवोकेट को उसके लाहौर हाई कोर्ट के चैम्बर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।